नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। अमृतसर के अजनाला शहर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक सेवानिवृत्त 80 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं बाद में मृतका के बेटे ने कहा कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है और उसने केस को लेकर एनआईए जांच की मांग की है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट है जी। मर्डर होया है, बजुर्ग लेडी है जी, और ਅਸੀਂ हर पहलू ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਕਲਪਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਸੀ ਸਹਿਮੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। दूसरा मर्डर है जी, पहला मर्डर भी सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀ। 1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਭੇਜਿਆ, 1 ਵਜੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰਸਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2:20 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਨੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ। अमृतसर में पिछले कुछ दिनों में एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बाइक सवार युवकों ने अमृतसर के फ्लैटों में आकर जमकर गुंडागर्दी की। बता दें, इन गुंडों के पास से कई धारदार हथियार भी मिले हैं और इस मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई। मैं ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਨੇ ਫੇਰ ਬਹਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੋ ਵੈਪਨ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੋਂਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਭੇਜਿਆ ਅੱਗੋਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਆਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਚ ਲਈ। ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਣੀ प्रधान ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। भटिंडा में आमदनी से ज्यादा जायदाद के मामले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह दौरान गुरप्रीत कांगड़ के हाव भाव बदले हुए नजर आए। बता दें, बीते दिनों गुरप्रीत सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से चल रही इंक्वायरी के चलते विदेश जाने से रोक लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि इस बात की सूचना देने के बाद में वो विवाह समारोह में विदेश जा रहे थे, विदेश भागने की फिराक में नहीं थे। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮਾ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਦੀ, ਵੇਚੀ ਵੱਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਹੁਣ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ 250 ਏਕੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। होशियारपुर की तहसील गढ़शंकर की नवाशहर रोड के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसे जानकारी देते हुए एएसआई
यशपाल सिंह ने बताया कि उन्हें नवांशहर रोड पर शव होने की सूचना मिली थी, जिस पर वो पुलिस पार्टी समेत मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल गढ़शंकर में रखवाया। बता दें, अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। हाँ जी, एक डेड बॉडी बरामद हुई है जी नवांशहर रोड पुल नहर तो जी गढ़शंकर तो ते ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋर्ट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। नहीं तक खबर कपूरथला से है, जहां पिछले महीने युवक की हत्या हो गई थी, जहां उसे सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया और मौजूदा डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नशे का ओवरडोज मौत के कारण बताया जा रहा है। मृतक की मां ने बताया कि उसके पति दुबई में काम करते थे और अपने बेटे की मौत का पता चलने पर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस मौके पर मृतक की मां ने पंजाब सरकार से न्याय की मांग करते हुए कहा कि मेरे बेटे की हत्या करने वाले दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। घरों कोई लै गया सी मुंडा जी, साडे महल्ले दा ही आ, राजा ओदा नाम है। बस मैनू बाबे दा कह के लै गया कि असीं बाबे दे चलने, मराशा चले। 5:30 बजे लै गए, मुड़ के इन्हें दस्सिया नहीं भी कित्थे लैके गया कित्थे नहीं। शुक्रवार सोनू 9 बजे फोन कर दिता भी मतलब उत्थे तुहाडा बेटा पिया आ। अच्छा जी, असीं उत्थों चक के टांडे लै गए। ठीक है जी। टांडे जो मैं गई तो उन्होंने कहा मतलब इसे खत्म आ। उत्थे सरपंच मैंबर पहुंचे 2 जने, इन्होंने मेरे को साइन करवा ले। फिर मतलब असीं मैनू कहंदे भी मतलब डेड बॉडी बस खाने पोस्टमार्टम लई ते उत्थे लै गए। और मैं उत्थे साइन कर दिते, ਉਹ ਸਾਈਨ ਝੂਠੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ और ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ पुलिस ने नशा विरोधी मुहिम पर एक्शन दिखाते हुए कपूरथला के कांजली गांव में एक नाकेबंदी कर स्कॉर्पियो चालक को रोका और उसकी तलाशी के दौरान उस कार चालक के पास से 180 ग्राम हेरोइन और 10 लाख रुपए ड्रग्स मनी बरामद किया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। सरकार की हिदायतों अनुसार जो नशा विरोध मुहिम चलते हुए साडे एसपी साहब श्री राजपूत संधू की हिदायतों अनुसार ਸਾਡੇ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਜੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਦੌਰਾਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ 180 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ है। हाँ, तफ्तीश कर रहे हैं। फिर यही थोड़ा पता लगा तो पहला कपूरथला के सुनियारा बाजार में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ गुंडे धारदार हथियार लेकर दुकान पर पहुंचे और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वहीं जब दुकानदार ने विरोध किया तो गुंडों ने दुकानदारों को धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने गुंडों को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस को देखते ही गुंडे वहां से फरार हो गए। दुकानदारों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने गुंडों को पकड़ने की जगह उनको भगा दिया और इस बात से आक्रोशित दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछों कोई गुंडे अफसर आए, दुकान की तोड़भन की, मेरे वर्कर कुटिया पैक हो के ले गए। जे पब्लिक ना होंगी ये बंदा मर जाएगा। पब्लिक ने धरना पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस मुख्य दर्शक बंदी देखती नहीं शहर की पुलिस ने पंजाब वाले पुलिस बनाई है और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, जबकि ड्यूटी पुलिस की बनती, फर्जी पुलिस का बनना बंदी जान माल की भाज करनी। पब्लिक हथियार चला रहे पे। मैं हुणी आया ही हाँ, मेरा बंदा मेरा मरिया पे एंबुलेंस की एंबुलेंस आती नहीं पई, पब्लिक डर हथ नहीं पाँगी पई, क्योंकि कहते कतल थोड़ी लेना अपने वो बंदा मरने पे वा एंबुलेंस को फोन कर रहे एंबुलेंस आती नहीं पई। नहीं जो बंदे आए सी लुट सुट करन आए की कौन है पुलिस लगी फड़ के बंदे अपनी शॉप से बैठा आया मैं देखा तो रौला आया, मैं आवाज ही आ रही सी। मैं काउंटर से बैठा, मैं शीशे से देखा 3-4 जने बंदे उत्थे खड़े थे
ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਆ ਵਾ, ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਚੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਚੈਨ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੋਂ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਰੇ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ 8-9 ਜਾਣੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਐਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਪ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਓਨਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਓਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ पुलिस ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, उन्नी देर तक गुंडागर्दी दोबारा उन्होंने आके फिर की है दोबारा। पंजाब के लुधियाना में यूथ अकाली दल के प्रधान मनप्रीत सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि लुधियाना में कॉरपोरेशन का हाउस भंग होने के बाद जो इन्होंने सभासदों की साइनिंग अथॉरिटी खत्म की है वो राजनीति से प्रेरित कदम है, और साथ ही कहा कि आम लोगों को साइन कराने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही साइन अथॉरिटी तब खत्म करनी चाहिए थी जब कॉरपोरेशन का नया हाउस बन जाता। देखो पिछले दिन ही इन्होंने बड़ा माड़ा ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 2 MLA ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੇ MLA ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ 2 ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਸਟ कर ਦਿੰਦਾ ਸੀ? नाहन के संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की जमकर सराहना की और कहा कि मोदी सरकार के बीते 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं, और केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक वर्ग के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिसको लेकर इन दिनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों के घर घर जाकर केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है। आजकल लोकसभा का चुनाव के दृष्टिगत और केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में और प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला हुआ है, जिसके मार्फत हमारे पार्टी के नेतागण, पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जो 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य किया और ये प्रयास किया है कि इस देश के सभी जो जनता है उसमें गरीब हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के लोग हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, सभी को लाभ देने का प्रयास किया गया है और अनेकों योजनाएं इस देश में लागू। पटियाला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पटियाला के उधम सिंह नगर में मां बेटे का कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। पुलिस ने 48 घंटे में हुए इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाया और अपराधियों को अपनी हिरासत में ले लिया। SSP पटियाला वरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कातिल रिश्तेदार था, कई दिनों से निगरानी रख रहा था। ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਫਾਦਰ, ਉਹ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਸਗਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੇਡੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बड़ी बेरहमी नाल जिहड़ा रूपनगर में एक पिता ने अमानवीय घटना को अंजाम दिया। बता दें, पिता ने अपनी ही 1 साल की बेटी की पीट कर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद परिजनों ने बच्ची के शव को इमरजेंसी में अस्पताल लाया गया, पर जब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। वहीं बच्ची की मौत के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। मतलब कुड़ी पहले नियाणे ने पहले कुड़ी तंग करता था जी, कुड़ी पहले रिपोर्ट भी कराई कई बार जी। हम छोटी जी कुड़ी हुई जी 1.5 साल की जी, ठीक है ना। पहले साढ़े को पहले लेन गए जी, लेके जाना जी, फिर लेके आया जी, कुड़ी कुट्टन लगे छोटी जी नूं। कुड़ी ने कुटदा कुटदा कई बार समझाया जी, चल कहना नहीं कुटूंगा जी। अज सवेरे कुट्टी कुड़ी बहुत, उन्होंने पहले कुट्टी कई बारी, हम कुट्टी मारते मारते कुड़ी मतलब गले पर निशान रुखे दे जी, कुड़ी ढिड च मारी मार के कुड़ी नूं जी हॉस्पिटल तैयार होकर खड़े थे ਨਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਬਹੂ ਬਾਥਰੂਮ ਮੰਗਈ ਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਕੀ ਲਾ ਲਈ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਹੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਤੀ। ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਾਇਦਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਇੱਕ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਸੀਗੀ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਘੋਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੁੜੀ। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है और देश की इकोनॉमी में उद्योग और उद्योगपति रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार है कि भारत की तरक्की की दुनिया भर के लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिनको तरक्की पसंद नहीं। ये जो मोदी और मनोहर जी की सरकार है, ये सकारात्मक काम करने वाली सरकार है। ये लोगों की समस्याएं जो आती हैं उनका समाधान करने वाली सरकार है। इसलिए और वैसे भी आप जानते हैं कि देश की जो इकोनॉमी है उसमें हमारा जो उद्योग है देश का, वो उसमें रीढ़ की हड्डी का काम करता है। आज देश की जो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की आज हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें हमारे देश के उद्योगपतियों का, उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। होशियारपुर के गांव नंगल बिहाला में बीमारी के दौरान बीएसएफ के जवान की पीजीआई अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं गांव वालों का कहना है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंचा। वहीं जानकारी देते हुए सिपाही राकेश कुमार के भाई ने बताया कि मेरा भाई सेंट्रल हेडक्वार्टर बीकानेर में तैनात था और अपनी बीमारी के चलते इलाज करवाने गाँव आया था और उसका इलाज पीजीआई अस्पताल में चल रहा था, पर बीते दिन इलाज दौरान इनकी मौत हो गई। मेरे बड़े ब्रदर से राकेश कुमार जी काफ़ी समय तो बीमार चले सी, ब्लॉकेज आ गई थी, हार्ट पेशेंट भी से कहते नशे ब्लॉकेज हो गई सी। तो जिस तरह ड्यूटी तो आए बीकानेर इन्होंने पोस्टिंग सी बीकानेर तो जो ड्यूटी तो आए तो हालत काफ़ी खराब सी, जिस तरह उन्होंने एडमिट किया गया और बीएसएफ तो रैफर किया गया इन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ तक। उत्थे इनका इलाज रहा तकरीबन 9 दिन इनका ऑपरेट होया इन्हों, लेकिन जो कि फिर भी प्रॉपर तरह वो नहीं रिकवर कर सकते। तो सी जी राकेश कुमार जी सन ऑफ श्री राम जी दास जी बीएसएफ च जॉब करते थे, काफ़ी दिनों तो पिछले बीमार से, तो हुण इन्हां दी अज इन्हां दी डैथ हो गई सी। तो असी इन्हां दे महकमे तो भी तो पंजाब सरकार तो भी मंग करते हैं जी भी इन्हां दे एक मैंबर नूं घर दे विच नौकरी दित्ती जाए, तो जो इन्हां दा बनदा हक इन्हां नूं दित्ता। बीएसएफ माधोपुर पठानकोट कल शाम ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ बीएसएफ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
जरा सेक्टर हेडक्वार्टर BSF बीकानेर ड्यूटी पे तैनात थी, लेकिन कुछ टाइम तो वो बेचारा बीमार चल रहा ही, जो कि PGI चंडीगढ़ में एडमिट थी। तो कल उन्होंने अचानक मौत हो गई है, जिसके कारण सानू BSF की टुकड़ी 58 बटालियन BSF अपने पठानकोट माधोपुर तो आई है। उन्होंने अपने शहीद जवान गार्ड ऑफ ऑनर दिता है, सलामी दी गई है। प्लस खबर फरीदाबाद से है, जहां रिटायर हुए कर्मचारी राजेंद्र सिंह पर किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बता दें, व्यक्ति ने राजेंद्र सिंह की चंडीगढ़ में कोठी, BMW कार समेत करीब 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रिश्वत लेकर अर्जित करने के साथ साथ कई आरोप लगाए, जिस पर रिटायर कर्मचारी ने सारे आरोपों को झूठा बताया है। बता दें, कर्मचारी राजेंद्र सिंह ने 36 साल नगर निगम में सेवा देने के बाद रिटायर हुए हैं। शुक्र करता हूं कि आप मेरी भी सुनने आए, क्योंकि कुछ दिन पहले एक शिकायतकर्ता ने, मैं जानता नहीं, एक तरफा बाइट चलाई थी जिसमें मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए गए थे। और आगे मैं यहाँ नगर निगम में बेदाग 36 साल नौकरी करने के बाद 31 जनवरी 2023 को रिटायर हो गया था। मैं उस टाइम बतौर सब रजिस्ट्रार नोडल अफसर नगर निगम कार्यरत था। ये सब आरोप लगाए गए हैं आप पर कि आप रिटायर होने के बाद आपने कुछ दस्तावेज साइन वगैरह किए थे और आपकी कोठी बताई गई है, आप पर जो है वो भ्रष्टाचार का आरोप है। क्या ये पूरा मामला है? सर, इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो कि आरोप लगाए गए रिटायरमेंट के बाद दस्तक किए थे, वो ओल्ड फरीदाबाद की कहानी थी। वहाँ के सिपाही निरीक्षक ने मुझे ऑन कॉल बुलाया था, किसी कोर्ट मैटर की हम तैयारी कर रहे थे। नवाशहर के काठगढ़ के पास के गांव में मां बेटे की मौत के बाद परिजनों में उनका परिवार के सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार कराया। गौरतलब है कि गांव एमा चाहल के कृष्णदेव के 24 साल के बेटे पर कनाडा में कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई थी। वहीं बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां को सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और दिल का दौरा पड़ने से मां की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। पंजाब में असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के सेंट्रल जेल में अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान डॉक्टर अखिल चौधरी IPS सीनियर कप्तान की देखरेख में किया गया। बता दें, सेंट्रल जेल के अंदर नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है, जहां 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दोनों अपराधियों के पास से 1 किलो हेरोइन, 3 पिस्तौल, कारतूस, 226 ड्रग्स मनी, 1,40,000 रुपए वजन नापने की मशीन और को जब्त किया गया है। कल एक अहम प्राप्ति नवांशहर और SBS नगर पुलिस ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਹੋਂਡਾ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਸ਼ਖਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 9:15 ਵਜੇ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਚੌਕ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1.2 किलो हेरोइन और इस तो अलावा 3 हथियार बरामद हुए हैं, जिन्होंने विचों एक 30 बोर का हथियार है, एक 32 बोर का पिस्टल है और एक 12 बोर का कट्टा है। और 260 करीब इन्हों को कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। 1,40,000 रुपए ड्रग बनी हुई है और इसके अलावा एक तोलने वाला कंडा बरामद हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।